جب عدالت کا فیصلہ آیا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عدالت کے اندر خود تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ ہمیں جی اور ایچ بلاک کے بیچ میں جو جگہ ہے ہمیں وہاں پر گراؤنڈ دے دی جائے جلسے کے لیے، اور جو ہے وہ جلسے کی اجازت ملی، لیکن عمران خان کو پتہ نہیں چلا۔ تو مطلب کمال ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اور لیکن یہ ہے کہ پھر سے وہی معصومیت اور عالی پناہ جناب شہنشاہ اعظم جو ہے ان کو ہر گناہ معاف ہے، ان کو کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، ان کو کچھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور کل ایک بڑی عجیب اور میں مذاق خیز نہیں، میں تکلیف دہ کہوں گی، جو بات کل ہوئی، جو فوٹیجز ہم نے دیکھی، ساری زندگی جو میوزک کو پنجابی ٹچ دیتے رہے ہیں، کل انہوں نے پاکستان کی قوم کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ عمران خان کی تقریروں میں اسلامی ٹچ دلاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر مذہب کا استعمال جس طرح سے عمران خان نے کیا، یہ کتنا مذہبی ہے، یہ کتنا اللہ لوگ ہے، میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کل جو اسلامی ٹچ دلانے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے ان سے، اور انہوں نے دیا بھی، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش بھی کی، ان کو شرم نہیں آتی؟ اسلام جو ہے وہ ٹچ دینے کے لیے ہے، یہ مذہب آپ کے تماشے کے لیے ہے؟ جس آدمی نے جو تقریروں میں اسلامی ٹچ دلواتے ہیں، انہوں نے ریاست پاکستان میں ریاست مدینہ اور طویز گنڈوں کا ٹچ دیا۔ انہوں نے حکومت کے اندر جب تھے تو حکومت میں اپنی نحوست کا ٹچ دیا، اور سیاست کے اندر انہوں نے بےہودگی، لچرپن اور دہشت گردی کا ٹچ دیا۔ معاشرے کے اندر انہوں نے گالی، گندگی اور الزامات کا ٹچ دیا، اور پھر پارٹی کے اندر زکوٰۃ خوری، کرپشن، گوگی بازی اور فورن فنڈنگ کا ٹچ دیا۔ یہ وہ پارٹی کوئی انتہا ہے، یہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں، یہ پاکستان کی عام عوام کے احساسات اور جذبات سے بھی کھیلتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ لبادے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے یہ سارے ٹچ جو ہیں یہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیے ہیں، اور اس بےہودگی، لچرپن کا ٹچ جو ہے، یہ نحوست اور گندگی کا ٹچ جو ہے، یہ جو زکوٰۃ خوری اور کرپشن فراگوگی کا ٹچ جو ہے، یہ پاکستان کی قوم کو قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے کل پاکستان کی عوام نے، خاص طور پر پنجاب کی اور کے پی کی عوام نے، عمران خان کی سیاست کو، عمران خان کی فتنہ اور فساد کی سیاست کو جو ہے وہ ایک داغ مفارقت دیا، ان کو جو ہے اس سیاست سے دفعہ دور ہونے کا ٹچ دیا، ان کو پاکستان کی سیاست سے جو ہے اس نحوست کو ختم کرنے کا ٹچ دیا، اور اس کے اوپر جو ہے پوری پاکستانی قوم بلا شبہ خراج تحسین کے مستحق ہے، اور ہم اس ملک کے اندر سے اس گندگی، اس بےہودگی، اس لچرپن اور اس جو مذہبی کارڈ ہے اس کو استعمال کرنے کے ٹچ کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ عمران خان کی سیاست کو اس کے اوپر مزید کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ طلال صاحب بہت شکریہ جی۔ کل سے آپ سب لوگ بھرپور ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے قوم نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ آپ کی کیمروں نے اس پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح کے جھوٹ بولے گئے تھے اور نکلا بعد میں کیا ہے۔ میں سب سے پہلے بھرپور مذمت کرتا ہوں ان میڈیا چینلز پہ جن پر حملہ کیا گیا ہے، یعنی جاتے جاتے آپ سے اور تو کچھ نہ ہوا، غصہ آپ کو کسی اور پہ تھا، بندے آپ کے نکلے نہیں، اور پتھر مارے ہیں آپ نے ان چینلز پر، ان میڈیا گروپس پر۔ کیوں؟ بندے انہوں نے بھیجنے تھے، انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ دل تو آپ کا کسی اور نے توڑا ہے، پتھر آپ کسی اور کو مارتے رہے۔ اور یہ کپتان صاحب تاریخ لینے آئے تھے، الیکشن کی تاریخ لینے آئے تھے، اور تاریخ دے کے چلے گئے ہیں۔ ان کا تھوڑا سا علاج بھی کیا ہے، اور ان کو دوائی دی ہے 6 دن کی۔
इंशाअल्लाह ताला आराम आ जाएगा, बिल्कुल आराम आएगा, वापस नहीं आएंगे। और अगर वापस आए तो फिर बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा जिससे वो कीड़ा निकालना मकसूद है जो कि इक्तदार का कीड़ा इन्हें तंग कर रहा है। और उसका ये छोटा सा एक एपिसोड जो है वो आपको हमने दिखाया है। मैं तो हैरान हूं, और मुझे यकीन करें बड़ा हवा बना हुआ था और हमने इंतजामात भी उसी हवे के नतीजे में भरपूर किए हुए थे। वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, चंद 100 लोग आपके नहीं निकले पंजाब में से। और कप्तान साहब 20 लाख की बात करते थे, वो मुझे तो 20,000 नहीं नजर आए। आपने सिर्फ यूथियों को शर्मिंदा नहीं किया, पाकिस्तानियों को नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने आपके हकूक का, आईनी हकूक का तहफ्फुज करना चाहा, उसको भी शर्मिंदा किया है। मैं खुद तौहीने अदालत की सजा मैंने भुगती है, और जब अदालत ने सजा सुनाई, मेरे तहफ्फुजात अपनी जगह, मैंने तो चंद अल्फाज कहे थे, वो भी सिर्फ पीसीओ जजेस के बारे में, किसी आईनी जज के बारे में मैंने किसी आग नहीं लगाई थी। मैंने किसी अमली तौर पर कोई ऐसा एक्शन नहीं किया था जैसे कप्तान ऐलान कर करके तौहीन करता रहा है उस ऑर्डर की कि पहुंचो डी चौक। और उसके बाद जिस तरह आग लगाई गई है पुलिस की बख्तरबंद से लेकर वहां इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है तौहीने अदालत का इससे फिट केस नहीं हो सकता। हम नहीं चाहते कि हमारे सियासी मुखालफीन जो है उनको टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, हम उन्हें सियासी मैदान में शिकस्त देना चाहते हैं। मगर इस बात का पता चलना चाहिए कि असल में अदालत का एहतराम और तौहीन कौन करता है। यह केस, इसमें इमरान खान तो पूरे पाकिस्तान को यह कहते हैं कि कौमें तबाह तब होती हैं जब भड़े के लिए कोई और कानून होता है और आम आदमी के लिए और कानून। मैं सियासी कारकुन हूं, जो मेरे लिए कानून था वही कानून मेरे कप्तान के लिए भी होगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा एतमाद है अपनी अदालत पे, एक जैसे फैसले। और ये तो अमली तौर पर जगह जगह पर, कोई एक जगह नहीं, कोई एक लफ्ज नहीं, इनके अगर लोगों के बयानात इकट्ठे किए जाएं तो ये तो पूरा जत्था है जिसने हमला किया है अदालत के फैसले पर। हमें एहतराम है, हम इन्हें टेक्निकल नॉकआउट नहीं करना चाहते, मगर इस बात का फैसला होना चाहिए कि तौहीन असल में की किसने है। और इसके साथ साथ ये जितनी इमलाक को नुकसान हुआ है, जो पुलिस अफसरान शहीद और जख्मी हुए हैं, हर चीज छोड़ देंगे, मगर कमाल शहीद से लेकर सालम इंटरचेंज पर और इस्लामाबाद में होने वाले जख्मी जो हमारे सिपाही हैं, उनके केसेस में नहीं छोड़ेंगे। ये दोबारा खोलना पड़ेंगे पीटीवी का केस, दोबारा फिर ट्रायल करना पड़ेगा पार्लियामेंट हमला केस, दोबारा फिर ट्रायल करना पड़ेगा वो सदरे ममलिकत दंदान साज से लेकर इन सबको। इस तरह के लोगों के दांत खट्टे ना हुए तो ये तमाशा रोज होगा। ये पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने वो निभाई है। इनका असल चेहरा जो है वो पिछले धरने में भी आपने देखा था। अगर हम इकदाम ना करते, अगर हम सख्त इकदाम ना करते, कमाल शहीद से जैसे कई वाकयात होते, अगर हम सख्त इकदाम ना करते, सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाई जाती, इल्जाम हम पर आता, फिर पार्लियामेंट पे हमला होता, इल्जाम हम पर आता, फिर किसी सरकारी अदारे पर वो चढ़ दौड़ते, बंदरों की तरह चढ़ जाते उस पे, जैसे पीटीवी पे चढ़े थे, इल्जाम हम पर आता। हमने नेक नीति से
अपनी सियासी वबस्तगियों से हट के इस पाकिस्तान के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। और मैं कमाल शहीद के साथ पूरे मीडिया को, आपको ये आजादी होनी चाहिए कि आपके कैमरे जो चाहें कवर करें। आपका तहफ़्फ़ुज़ भी हमारा फर्ज बनता है और आपका तहफ़्फ़ुज़ भी उसी तरह ही करेंगे जैसे कि हमने तहफ़्फ़ुज़ अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कर रहे हैं। मैं तो आज क्योंकि रात से ये तमाशा खान साहब का देख रहा था, मैंने कहा एक वक्त था कोई मुंह में चूसनी देता था, कोई पैम्पर लगाता था, अब ना मुंह में कोई चूसनी देने वाला है ना पैम्पर लगाने वाला है। बच्चे से चला ही नहीं जा रहा। बच्चा बेचारा इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, उठाते हैं फिर गिरता है। इस बच्चे को चलना नहीं आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, धोखा ही धोखा है। रियासत मदीना का नाम लेकर जो कुछ इस पाकिस्तान के साथ किया गया है, रियासत मदीना का वाली और उसका खलीफा इस तरह का नौजुबिल्लाह इमरान खान, जो ये नहीं बता सकता कि उसके बच्चे कितने हैं, इससे आगे नहीं मैं जाऊंगा। ये रियासत का नाम लेकर मुंह में जिन्होंने चूसनी दी थी, अगर निकल गई है तो तड़पो ना। ये अब तुम्हें मुंह में चूसनी और तुम्हारा पैम्पर नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान तभी चलेगा और जिस तरह अब तुम्हें बुरा लग रहा है न्यूट्रल न्यूट्रल कह के, कि जब हर कोई अपना काम करेगा। और मुझे उम्मीद है कि हर आने वाले दिन में हर अदारा पार्लियामेंट समेत हर कोई अपना काम करेगा। और आज मैं वैसे जब आया हूं आपके पास, तो मैं तो एक ही वो ये सोशल मीडिया देख रहा था, क्या जबरदस्त किसी ने गाना गाया, यकीन करें। मैं वैसे याद करने की कोशिश करता रहा हूं, मैं याद करने की, लेकिन कहीं वैसे चला भी दूंगा। उनके डट के खड़ा था जो कप्तान, नस गया जे ओ इमरान, यूथ ये सारे पुछदे ने दसते जा कुछ कप्तान, सानू सड़कां ते रोल के हैली ते चढ़िया जे कप्तान, 20 ਲੱਖ ਦਾ रंगबाजी करके 20,000 नहीं आया कप्तान, हुण जे आया तू कप्तान मारांगे लित्र तेरे नाल। तो मेरा ख्याल है कि आप, मैं वैसे किसी वक्त ना ये गुजारिश ये है खुदा के लिए इस पाकिस्तान को किसी काबिल रहने दें। इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब आपने लाकर उस पर फिर हमला कर दिया, और फिर उस हमले में आप अपनी जो आपकी गंदी सियासत है उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इस्तेमाल करके मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से भी आपने अपना एतमाद खो दिया होगा। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं, मैं दस्त बदस्ता गुजारिश करता हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं। तौहीन अदालत का मेरा मुकदमा जो है वो उसमें मैंने भुगता है। जिस तरह मेरे जैसे सियासी कारकुन के साथ मैं तो समझता था कि वो केस ही नहीं बनता, लेकिन अदालत ने जो हुक्म दिया मैं आज तक भुगत रहा हूं। कप्तान ऊपर से उतरा हुआ नहीं है, और कप्तान ही ये कहता है, और वो कहता है कि ये दीन का हुक्म है। ये जब इस्लाम आया था तो उस वक्त इसीलिए ये अल्लाह का हुक्म है कि बड़े आदमी और आम आदमी के लिए कानून ऐसा होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कप्तान भी इस उसको जो तौहीन की है वो उसकी कौम के सामने भी आएगी और सजा भी पाएगा। बताइएगा कि आपने गुज़िश्ता रोज मरीम साहब ने भी कहा था ये फितना है, साल है, इंतशारी है, इसका इलाज मुस्लिम लीग नवाज करेगी या कहीं और से होगा इसका इलाज? आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग आज़म बुखारी और तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की वजह से मुल्क में बदअमनी पैदा हुई है। कब तक पाकिस्तान को इमरान खान के रहमो करम पर छोड़ा जाएगा? पाकिस्तान का अमन तबाह करने पर इमरान खान से सवाल होगा। मीडिया हाउसेस पर हमलों और पथराव की मजम्मत करते हैं। साथ ही आपको बताएं कि तलाल चौधरी का कहना था कि थोड़े दिन की दवाई दे दी है, इमरान खान को आराम आ जाएगा, अगर नहीं आया तो पीटीआई का ऑपरेशन किया जाएगा।